ऑडियो उठा दे। उन लोगों को फीमेल क्या कहते हाँ? हैं? मेल है क्या उसके नहीं तो स्पीकर लगाना। स्पीकर 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 कहाँ है? स्पीकर नहीं है सामने आता स्टेज के पास। Welcome our Jito Chairman, Prithviraj Kothari and Manoj bhai, please come on the stage. Manoj bhai. Thank you, sir. I would like to take this moment to congratulate the entire team of Jito Hyderabad for the outstanding success of Jito Connect. This remarkable event has taken Jito to greater heights and further cemented its presence on the global stage. Now to welcome you all, I would request Shri Kushalji Kankaria, Zone Chairman for JATF TNA PTS Zone, to welcome you all. Kushalji, if you can come to the stage. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अब बोलने की जरूरत ही नहीं मनोज जी है। वेलकम टू चेयरमैन श्री पृथ्वीराज जी साहब कोठारी, सुखराज जी साहब नाहर, गणपत जी साहब चौधरी, and our officers, Sri DC Jain sir and Sanjay Jain sir and Pratik ji and Dheeraj ji sir and Mukesh ji sir, all are welcome to Hyderabad for this occasion, Jito Connect. Why I will give you a small story of JTF. क्यों मैंने ज्वाइन किया JTF? JTF is a connect, जिस लाइक if you see कि हमें कुछ भी काम मिला है, मुझे कुछ भी काम पड़ा है across India and globally, I have got so much of connections कि खाली एक कॉल किया है तो मेरा काम हो गया है। काफी जगह से मैंने देखा है कि अपना काम रहो या किसी का भी काम रहो, हमने देखा है कि इतना हेल्पिंग हुआ है JTF मेरे लिए तो particularly, और JTF members, first of all very thankful to all the JTF members who came across India and abroad also. So this connection made me so helpful, connect to people if I want to help for myself and for anyone. A call is away for me to call any of the JTF member across India. जैसा अभी मैंने जैसा ऑफिसर्स वगैरह की किसी की भी बात करते हैं, मेरा काम रहा या किसी का भी काम रहा है, खाली एक कॉल, 2-3 एक्सपीरियंस मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि किसी की फाइल 6 महीने 7 महीने से पड़ी हुई थी, खाली एक कॉल किया, देख लीजिए सर कुछ होता है। आई रियली टेल भाई 50 जने बैठे हैं, बट व्हेन द पर्सन हैज गॉन टू हिज प्रीमिसेस और हिज कैंप, विद इन फ्यू मिनट्स दे कॉल्ड हिम। जो 6 महीने 7 महीने से जो काम नहीं हुआ है, हार्डली इट टुक फ्यू सेकेंड्स टू गेट दैट वर्क डन। लाइकवाइज वी हैव सीन सम बिल्डिंग थिंग्स आल्सो वाज गोइंग। तो जब फायर का कुछ मिलता है नहीं मिलता है,
hardly they told we believe you, just signing without asking anything you. So this is the power of the JTF officers also. We are very, very thankful to all the officers and who has taken a visionary of JTF to all the visionaries also. I am very grateful and thank you for coming. Thank you, Kushubai. Respect the time and time will respect you. I know you hear this from me every time I am on this podium, but once again I am making a humble request to everyone. Please keep your thoughts to the time allotted to each and every speaker so that program can run smoothly and we can conclude on time. Now I would like to request Shikrish Jain, our Vice President, to kindly share his thoughts with us. बीच में बैठ कुछ काम है Jai Jinendra, good morning everybody. Respected dignitaries of the dais, respected officers, respected apex from the G2 and JTF, dear friends, beloved members of the JTF, patrons and our community at large. It's truly an honor to stand before you today to share the vision of JTF. Our dream is to create a pool of young, ignited and talented minds who are guided by honesty, humility and compassion. We believe that such a generation will serve the greater cause of humanity, brotherhood, non-violence and peace. JTF seeks to act as a catalyst for innovating changes. We aim to nurture leaders who carry not just knowledge but also ethical values. Leaders who will serve society with integrity, fairness and empathy. At the heart of our mission is education. By encouraging youth to aspire for civil services and pursue higher studies, we open doors not only to their personal growth but also to enrichment of our community and the progress of our nation. आज हम ऐसे दौर से जी रहे हैं जहाँ चुनौतियाँ बढ़ी हैं, असमानता और सामाजिक दबाव, लेकिन इन सबसे बीच हमारे युवाओं की क्षमता असीमित है। यदि उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन मिले तो वे हमारे समाज और राष्ट्र दोनों के लिए तस्वीर बदल सकते हैं। जाट का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है। हमारा धैर्य है युवाओं को प्रेरित करना, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें ईमानदारी, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सक्षम बनाना। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेके जाट कि इस यात्रा में साथ देंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां ज्ञान, संस्कृति और सेवा की ऐसी विरासत पाए जिन्हें हम सब गर्व करें। थैंक यू। जय हिंद। Girish Bhai mentioned the word catalyst. The word catalyst in our team is Gautam Bhai, who is missing today in the action, who keeps us together, active and on the toes, running every day. So in last AGM, Gautam Bhai has unveiled the tagline of JTF, mind that leads and heart that serves. It was not only for the trustees, but also for the officers that we want to prepare bright minds to lead with integrity and compassionate heart to serve the society. So it's about the trustees and officers also. Now, I would like to call upon a person who has been giving his services to Jito and JTF for last many years, I will say decades. Ganpatji Chaudhary, I would request sir, please share your thoughts with us for 2 minutes. गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। प्रभु श्री महावीर के चरणों में मस्तक वंदन। इस
straight away I'll go to the subject. Recently, apart from the DITF activity which everybody will speak, recently I have been given the new responsibility after retiring as a chairman of JITO. Is the creation of hostels. In the last 18 years, we have created several hostels in the several cities with the capacity of over 1400 beds for the 1400 students in various cities. Now, JITO OPEX management has taken a new decision that along with our branches, when I say JITO, JITF, it's a one family, one JITO, one nation. So in the JITF or JITO, I have been given the responsibility of creation of 5,000 bed hostels in next 5 years. And friends, it's easy. I will not say it is not possible or impossible or anything. This is a platform where somebody has to take the lead with the clear vision that what is the way forward and how we are going to go ahead. As I have been given the responsibility, and I am sure all of you who are sitting here, whether they are JITF trustees or Sarvanarogyam or JIP or JITO, I will need full support from all of you. And very soon, in next 2 months, we will come with the clear-cut policy. In the beginning of the JITF, hostel project was with the JITF, and with the support of JITF, not only for JITF activities, for general student. When I say 10,000 bed, it will not be only for officers, because everywhere we cannot create the centers. Centers is a very specialized job at a specialized place. So it will be for a general, for graduation student, because we need to support each and every Jain student in many education hub, because there is a tremendous shortage and people are paying through nose as a paying guest. Our Jain children who are coming from the villages to the cities, paying 20-25,000, and without a good security, without a good food quality or whatever. So thanks to the entire management of the JITO family who has entrusted this responsibility, and I can assure all of you that together with the help of all of you, we will implement and roll out the plan soon to create new vision, and not only the vision, but we will implement every year 1,000 bed we will add somewhere in India with the help of some chapter. So thank you for giving me this opportunity, and very soon I am going to approach all of you for support. Thank you so much. Thank you, Ganpat uncle. There are no limitations to the mind except those we acknowledge. And the person who is breaking all the limitations of JITO and taking JITO to the next level, Shri Prithviraj Ji Kothari, I would request him to please come on the stage, sir. सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र भाई को। नरेंद्र भाई को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जो फुल सर्कल जो आपके समय से स्टार्ट हुआ था और जो रफ्तार पकड़ी थी, उसी रफ्तार को हमारे इंदर भाई, गौतम भाई, मयूर भाई और पूरी JTF की टीम उसी लेगेसी को आगे लेके जा रही है। आज फुल सर्कल के माध्यम से हम लोग हर स्टेट के अंदर जहाँ जहाँ बड़े बड़े सेंटर हैं वहाँ पे हम लोग पहुँच पा रहे हैं, लोगों को JTF के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले खास स्पेशल धन्यवाद मैं हमारे मेंटर को देना चाहूँगा, DC जैन साहब और उनकी पूरी टीम। इनसे पहले जिन्होंने भी मीठा लाल जी के टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ बन रही है वो सब इनकी बदौलत है। मैं एक बार जितने भी हमारे मेंटर्स थे उनके सबके लिए मैं ज़ोरदार तालियां। जैसा भी हम लोग पहले भी कहा था, फुल सर्कल अभी लास्ट बॉम्बे में हुआ था कि हम लोग UPSC के अंदर एक सीमित रह जाते हैं। 800 सीट में OBC और वो सब निकाल के 400-380 जितनी सीटें बचती है, और उसके अंदर में 380 में से हमको सिलेक्ट किया, यानी शेर के मुंह में से छीन के लाना, वैसे हिसाब किताब है।
और उसमें हम 30-32, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेहनत करें जैन साहब तो 40, उसके ऊपर हम जा नहीं सकते। तो व्हाट द नेक्स्ट, दूसरा क्या करें ताकि हम लोग संख्या में कम है फिर भी हम लोग बहुत तगड़े हैं हर चीज़ में, हर फील्ड में। अभी मैं जीतो प्रोफेशनल फोरम की वहाँ से होके आया तो मैंने देखा 30 प्रोफेशनल्स आए हैं, रिलायंस से भी है, माइक्रोसॉफ्ट से भी है, एक से, और 330 जैन है। गौतम जी, ऑल 30 इज़ अ जैन और ऑल टॉप प्रोफेशनल्स। तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग कहाँ हैं, और जब मिलते हैं जैन प्लेटफॉर्म पे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इस साल जीतो एक नया इनिशिएटिव लेने जा रही है, जैसे लास्ट टाइम का जीतो ओलंपियाड, एजुकेशनल ओलंपियाड। इसमें हम लोग 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को एक ओलंपियाड कराएंगे, जिसके अंदर समझो 5,000 एप्लीकेशंस आती है, 10,000 आती है, 2,000 आती है। उसमें से हम टॉप 50 बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम 6 टू टिल एजुकेशन कंप्लीट तक उसकी पूरी जवाबदारी जीतो लेगी। यानी उस बच्चे को हम, इसकी वजह ऐसे है कि हम देखते हैं कि हम लोग हर जगह पे टॉप पे नहीं है, हर फील्ड में है बट टॉप पे नहीं है। हम प्रोफेसर्स नहीं है, डीन नहीं है, रिसर्चर नहीं है, रिसर्च नहीं है, हर सेंटर में हम लोग टॉप पे नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि 6 स्टैंडर्ड हर साल 50-25 बच्चे को हम ऐड ऑन करते जाएंगे, और उनको जहाँ पे भी जाना है, जनरली देखते हैं कि हम 12th के बाद में मूव करते हैं, बट यहाँ 6 स्टैंडर्ड से हम उनको मूव करेंगे। उसको स्पोर्ट्स में लाइक करना है या उसको पॉलिटिक्स में जाना है, कहाँ पे जाना है। तो जीतो ये फर्स्ट टाइम पहल कर रही है, चाहे वो JTF के अंदर प्रोजेक्ट हो या जीतो में हो या जीप में हो, बट इस प्रोजेक्ट को हम लोग बड़े स्केल में लॉन्च करना चाह रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जीतो एजुकेशन ओलंपियाड में आपके कोई भी आइडिया, जो मैंने बहुत से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इनसे बात की, स्कूल से, हॉस्टल से, तो जीतो के लिए जैन स्टूडेंट के लिए 50% डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार है। बहुत से स्कूल सामने से भी आई है, बहुत से बोर्डिंग स्कूल भी सामने से आए। तो मैं एक बार फिर से JTF की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फूड सर्कल का इसी तरह का प्रोग्राम, इसके आगे भी जो लेगेसी आती है, जो भी आएंगे 2 साल के बाद में, वो भी इसी तरह से प्रोग्राम करते रहे। लोग जुड़ने के लिए तैयार है। अगर 506 अगर आप 506 की लिस्ट देखेंगे या किसी के सामने रख देंगे तो जो मेंबर नहीं बनना चाहता है वो भी उत्पल भाई मेंबर बनने को तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू काका। नाउ मैं बुलाना चाहूँगा जिन्होंने हु इज़ बीन अ पिलर ऑफ JTF इन TNA PTS जोन, श्री गौतम जी पोखरना साहब। मैं चाहूँगा कि आप आएँ और हमें आशीर्वाद दें। I would say I was privileged to be part of this team when Ganpat ji announced my name, and I never knew that this platform will be so big. And more than anything, the satisfaction that we get, because we all earning people here, but the satisfaction when we get is by giving, and this is to our community's platform where we see a lot of bright students passing through and becoming officers serving this country and the humanity. So I am thankful to all of you for coming to our home chapter. I was the chapter chairman when we started this chapter in Hyderabad, and nice to see all the JITO members coming to Hyderabad and blessing us. Thank you very much. Generally, Gautam Bhaiya is one who takes care of everything, and today is not here, so we have tried to divide his work among us. So let's just remind ourselves of our JTF mission. Our JTF mission is to build a professionally led, tech-enabled, and empathy-driven JTF, committed to creating world-class infrastructure, a nurturing ecosystem, and a robust mentorship aimed at delivering exemplary outcomes in civil services, judiciary, and IIT training. What JTF is doing, we have 6 hostels who are now fully tech-enabled, running on ERP, cashless hostels,
and all the mentors, every hostel have their own mentor, dedicated mentor to take care of the students. Then we have we have professional team who takes care of JTF running. So in a way, JTF is now a fully oiled machine which is running and want to go aspire bigger and bigger in the future. Now, I would like to call upon Shri Narendraji Mehta, the past president of JTF, to please come on the stage and sir, guide us with your visions. थैंक यू सुयश। जय जिनेंद्र। बोलने के लिए कुछ है नहीं अभी, मतलब इतने सारे प्रोग्राम हम अटेंड करते आ रहे हैं। तो जेटीएफ के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा लूँगा कि बॉम्बे में मेरे को 2 मिनट का टाइम नहीं दिया था इसके लिए। मैं पृथ्वीराज जी के जैसा बोल रहा हूँ कि आज जस्ट मतलब शुरुआत से 2008 से हम जुड़े हुए हैं और जिस टाइम पैसा नहीं था उस टाइम से ये स्ट्रगल चालू था। ट्रेजरर बना उस टाइम पे एफडी हार्डली 2 करोड़ की होगी उस टाइम पे, मतलब शुरुआत थी उस टाइम। उसके बाद पृथ्वीराज जी और जेबी जैन सर आए और उसके बाद शुरुआत अच्छी हुई उसके बाद। बट लास्ट टाइम जब हम आए, मैं जब आया प्रेसिडेंट एज आफ्टर सेक्रेटरी और 4 साल का कूलिंग पीरियड था, तो देखा हमने कि भी इसको अभी अपने को प्रोफेशनलिज्म लाना है और इसको सारे सिस्टम थोड़े, क्योंकि जेबी जैन सर उसी टाइम रिटायर हुए थे और जेबी जैन सर की पकड़ इतनी थी वहाँ हॉस्टल में कि वो बैठ के काम कराते थे। तो मैंने देखा हम ट्रस्टी लोग कितने, हम आते थे स्टूडेंट के सामने बैठते थे, हमारा कोई काम ही नहीं, रोल ही नहीं था। तो जब आने के बाद एक तो हमारा 3-6 महीने में मतलब पोस्टपोन हो गया, मतलब अनिल जैन से जो हैंडओवर लेना था वो भी थोड़ा पोस्टपोन हुआ। फिर बहुत ज़्यादा टाइम तो कन्विंस करने में, डीसी जैन साहब को कन्विंस करने में लगा कि सर आप बोर्ड पे आइए। तब इन्होंने, इनके एकेडमिक लोगों ने मीटिंग की और डीसी जैन साहब को फोर्स किया कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। दूसरे लोग भी आए, आप भले पोस्ट पे हो भले, लेकिन आपको आना पड़ेगा इसमें। और उस टाइम शुरुआत हुई कि हम इसको प्रोफेशनलिज्म कैसे करें। पहले एचआर जयश्री को प्लेटफॉर्म पे लाया, उसके बाद एक एक हॉस्टल का सब हमने रिव्यू करना चालू किया और उसके बाद देखा कि सीएसआर के इतने पैसे आ रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ बहुत, हम खाली सब हॉस्टल का भाड़ा ही दे रहे हैं। दिल्ली के हॉस्टल का भाड़ा 25 लाख रुपए दे रहे थे, हर साल 5% इंक्रीमेंट प्लस हमारे कॉम्प्लाइंस, मतलब वो एक साइड में, क्योंकि सारे लोग अभी सीएसआर में पैसा दे रहे थे एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से, और पैसा भरपूर था, कैरी फॉरवर्ड था 25-30 करोड़ रुपया। तब हमने एक डिसीजन लिया कि सारी प्रॉपर्टी अपनी होनी चाहिए। पहले दिल्ली हमने ली लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके बाद हमने इंदौर ली, उसके बाद मेरे ख्याल से पूना में लिया, उसके बाद शायद कोटा का प्लॉट भी लिया मेरे जाने के बाद, उसके बाद उसके जाने के पहले पूना का प्लॉट लिया कि भाई ये भाड़ा सब बंद होना चाहिए। बॉम्बे की ऑफिस ली। तो जाने से एक एक्सपीरियंस जरूर हुआ कि हमको एजुकेशन जो है पूरा का पूरा प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए। हमारा काम नहीं है, हम बैकबोन है, जीतो और जेटीएफ और पूरा एक परिवार है जो कि इसमें हर तरह से हेल्प करता है। और लास्ट 5 साल में हमने देखा है कि जीतो का ग्रोथ जो है एबनॉर्मल है, इतना बड़ा हो गया है कि अब तो हम जाते तो जो हमारे 20-25 लोग हम पुराने लोग हैं या 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो अभी लगता है कि हजारों लोगों का परिवार हो गया है। और फिर लास्ट टाइम जब हमने अनिल जैन और हेमंत भाई ने जब उस टाइम एक प्रपोजल रखा था कि उसको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ किया जाए, क्योंकि 15 लाख देते थे हम 10 साल में और 15 लाख रुपया आता था, लेकिन वो फॉलोअप करके ट्रेजरर भी थक जाता था यार। तो 1 शॉट में भी पेमेंट की स्कीम निकाली तो काफ़ी पेमेंट 1 शॉट में आ गया। उसके बाद हमने जाने के टाइम 2 करोड़ रुपया किया तो लोगों को लगा 2 करोड़ रुपया क्या होगा, ये तो बहुत बढ़ा दिया आप लोगों ने। पर ये 9 महीने में या 12 महीने में नई कमेटी के साथ में जो उन्होंने, मतलब खाली अभी विजिट कर रहे हैं और उसमें 84 ट्रस्टी बन गए। मतलब ये तो, मतलब हम बोल रहे थे कि पैसा नहीं आएगा। तो मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है अभी जीतो और जेटीएफ की कमेटी से और जो भी बोर्ड पे आते हैं कि ये 509, और अभी बात चल रही थी कि मेंबरशिप बंद करना है, मेंबरशिप बंद नहीं करनी है, इसको 1000 पे लेके जाना है। और जैन समाज पैसा दे रहा है तो उसको लेके हमको यूटिलाइज करना है, उसको हम बिजनेस स्कूल बनाए, हम यूनिवर्सिटी बनाए, हमको सोचना है। और अभी जो पीछे की स्पीड है वो नहीं चलेगी, अभी तो स्पीड, इसको डबल स्पीड से जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बाजू से आपके पास पैसा आ रहा है और आप उसको पैसे को फ्लो को रोक नहीं पा रहे हो, और उसके सामने अगर हम डिसीजन जल्दी नहीं लेंगे, हम खाली मीटिंग, हमारे को डिसीजन फास्ट लेना चाहिए। ये कमेटी से भी मेरा रिक्वेस्ट है, मैं भी वो कमेटी का पार्ट हूँ।
और ऐसा नहीं सोचे कि एजुकेशन में हमको हॉस्टल में कहीं मिलेगा नहीं, सब जगह पे स्टूडेंट आएंगे। पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, जयपुर में जब प्लॉट लिया था 10 साल पहले, तो प्लॉट ऐसे ही पड़ा रहा, जयपुर में स्टूडेंट नहीं थे हमारे पास। धीरे धीरे जयपुर में स्टूडेंट आने चालू हुए। इंदौर में हमने सर्वे कराया था कि उस टाइम स्टूडेंट नहीं आएंगे, इंदौर में पूरी भर गई। पूना में लास्ट 2 साल पहले जब पृथ्वीराज जी थे तो उस टाइम पे भी देखा कि स्टूडेंट नहीं आ रहे थे। तो अभी पूना में भी एक पूरा प्रोफेशनलिज्म मैनेजमेंट आया है जो कि बहुत ध्यान रख रहा है पूना हॉस्टल का, और उसमें भी अभी सारे स्टूडेंट आ गए। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हॉस्टल एजुकेशन के लिए पहले सब जगह हॉस्टल होनी चाहिए, सब जगह एजुकेशन सिस्टम अपना स्ट्रांग होना चाहिए, और आगे हम ट्रस्टी बनाते जावे। पैसा आ रहा है उसको हर शहर में हमारा ऐसा एजेंडा होना चाहिए कि बिजनेस स्कूल होनी ही चाहिए। एक पहली शुरुआत करें और उसमें हमारे जैन बच्चे के साथ में दूसरे भी मेरिट के ऊपर दूसरे भी थोड़े हम हमारी कमेटी के साथ में बैठ के कैसा उसको कॉम्प्लायंस करना है वो देख के उसको अच्छी स्कूलें बनावे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमको जो स्पीड में अभी बिजनेस स्कूल बनानी है उसको अलग तरह की स्पीड चाहिए, बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी, और अभी 500 से 1000 मेंबर कैसे बने उसके ऊपर, और वो पैसे का सदुपयोग कैसे करें। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने को फास्ट स्पीड में चलना है, प्रोफेशनलिज्म लाना है, और हर शहर में हमारी बिजनेस स्कूल हॉस्टल होनी चाहिए। थैंक यू। I would like to welcome our President of JITO, our Secretary General and Himanshu Bhai Vice President, विजय जी, ललित जी, हिमांशु जी, आपका स्वागत है JTF के फुल सर्कल में। मैं चाहूँगा विजय जी आप स्टेज पे आएँ और 2 मिनट और हमारे साथ अपने थॉट शेयर करें। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जीतो के अंदर रफ्तार से अगर कोई विंग या कोई प्रोजेक्ट या कोई चल रहा है तो सिर्फ JTF ही चल रहा है, और उसके पीछे सदियों से बहुत सारे लोगों का हाथ है। और इस बार विशेष तौर के ऊपर ये टीम ने जो लीगेसी को आगे लेकर गए हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उन सारे नेताओं का, सारे लीडर्स का, सारे ऐसे मतलब जिन लोगों ने एक सोच बनाई और उस सोच को पर्याप्त तक लेके जाने की जो लोग अपना एक मिशन बना चुके हैं, ऐसे सारे लोगों को अभिवादन है। इस बार हमने पिछले कई साल से देखा है कि JTF दिन ब दिन बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है। इंदर जी जैन, गौतम जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत अभिवादन देता हूं कि इन लोगों ने इस बार विशेष तौर के ऊपर कुछ बहुत सारे चेंजेस किए, और उस चेंजेस का परिणाम हमें दिख रहा है कि आज सभी जगह पर JTF के लिए मेंबरशिप की डिमांड नहीं करनी पड़ती। वहाँ पर सामने से लोग आते हैं और वो खुद ही कहते हैं कि हमें JTF का मेंबर बनना है। JTF एक ब्रांड बन चुका है, और इस ब्रांड को बहुत सारे काम आने वाले समय में करने थे। अभी तक हम लोगों ने, वो कहा जाता है कि बहुत अच्छी अभी तक तो नापी है ज़मीं हमने, अभी पूरा आसमां बाकी है। ऐसे इस तरह से बहुत सारे कार्य अभी आने वाले समय के अंदर होने वाले हैं। हमारे बहुत सारे हॉस्टल्स, बहुत सारे हमारे बिजनेस स्कूल्स, इसके ऊपर अभी मंथन की हमारी जितनी भी एडवाइजरी कमेटी उन लोगों ने सोच बनाई। हमारे चेयरमैन श्री पृथ्वीराज जी कोठारी हमेशा एक एनर्जेटिक ऐसे व्यक्तिमत्व रहते हैं, और उन्हें बहुत कुछ कार्य बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से करना है। जैसे ही इस मिशन की कि हॉस्टल्स हमें बनाने अलग अलग शहर के अंदर, जैसे ही बात चली, सबसे पहला डोनर, यानी हम लोगों ने कहा था कि भागीदारी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। JTF की भागीदारी तो आई, लेकिन सबसे पहला डोनर हमें संजय जी डांगी साहब के रूप में मिला, और वो 15 करोड़ रुपया उन्होंने उसी समय 1 मिनट भी नहीं गवाते हुए किया। तो जीतो के अंदर अस्मरणीय ऐसे कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, और ये एक शुरुआत है। इस शुरुआत का आने वाले समय के अंदर बहुत पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पर आपको हॉस्टल दिखेंगे, बिजनेस स्कूल्स देखने वाले हैं। इंदर जी और गौतम जी का विजन है कि इस बार उन्हें कुछ नया करके दिखाना है, क्योंकि हर बार जब JTF की टीम आती है, पिछली बार नरेंद्र की इनकी टीम थी, उन्होंने ही बहुत अच्छा किया था। नरेंद्र जी, आपने जो मतलब वो स्टोन आपने डाला और उसको जो आगे आप लेकर गए, तो उसको आपको भी बहुत बहुत अभिवादन है। DK जैन साहब यहाँ पर है, और एक मसीहा के रूप में कहते हैं कि अगर आपके साथ जोश और होश मिल जाए तो जीवन के अंदर का कोई भी बैटल आप
हार नहीं सकते। डीके जैन साहब, आपका विशेष तौर के ऊपर स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बार के रिजल्ट जो है ये आप ही की वजह से थे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजती है। तालियां बजानी है तो जैसे जोर से बजानी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कि भाई कुछ तो बज रहा है करके। तो बहुत बहुत उनका भी अभिवादन है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमारा एक्चुअली पूरा मैराथन चल रहा है, हर 5 मिनट के बाद कहीं ना कहीं अभी जाना है, और अभी एक सस्टेनेबिलिटी के वहाँ पर भी एक प्रोग्राम है। इंदर जी, अभी हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग जो कार्य कर रहे, अविरत कार्य आपका इसी तरह से चलते रहे, और इस कार्यकाल के अंदर एटलीस्ट कम से कम 5 हॉस्टल्स होने चाहिए। 5 हॉस्टल्स अगर आप करके अगर दे दिए तो हमारे गणपत जी ने पूरी, मतलब गणपत जी जब कोई चीज़ लेते हैं तो उनकी जो रफ्तार होती है, और लास्ट के 10 ओवर जो होते हैं वो गणपत जी के होते हैं। हम उनके चेले हैं, हम उनके पीछे पीछे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 5 हॉस्टल्स कम से कम, भूमि पूजन तो भी हमारी ये टीम करे, ऐसी हम आशा करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जीतो। किशोर भाई, शुरुआत जो होती है ना, हमेशा अच्छे व्यक्ति से करते हैं हम। और जो संजय भाई ने जो कोई उनको बोलने नहीं गया था। संजय भाई आइए, एक बार जरा मंच पे आइए प्लीज। संजय भाई आइए। तो इंदर भाई कृपया आए ऊपर। ये एक मोटिवेशन है सभी के लिए, और कहते हैं कि पहला आदमी हमेशा याद रहता है, और उसके लिए पहली बार, और अभी यहाँ पर तो बहुत दानदाता बैठे हुए हैं, और हो सकता है कि इनका मोटिवेशन देकर आज ही पूरे 5 कंप्लीट हो जाए। किशोर भाई, दो हॉस्टल बॉम्बे में आ रही है। एक हॉस्टल प्रदीप राठौड़ जी ने खारघर के अंदर बनाई है, उसमें 44 रूम्स है, और एक जू के अंदर विलेपार्ले में, और 2 हॉस्टल पाइपलाइन में। एक हॉस्टल गणपत जी अहमदाबाद में, और एक कलकत्ता के अंदर। ये 4 हॉस्टल है। विजय भाई, कल बाबा रामदेव ने आपको भंडारा बोला। आप यार इतने बड़े भारी भरकम हो, और आप इतनी छोटी छोटी डिमांड करते हो कि 5 हमारे कार्यकाल। अरे आपके पास तो 12 महीने हैं, तो 12 तो मांगने थे। अब आपने सिर्फ 5 मांगी है। 2 पृथ्वीराज जी ने बॉम्बे का बोल दिया, एक मैं अहमदाबाद का कमिट कर रहा हूँ, और एक कलकत्ता का, और ये 5 तो आपको मार्च के पहले ही करके दे देंगे यार। आप कुछ मांगो तो कुछ बड़ा मांगो, पृथ्वीराज जी के साइज का। सो फ्रेंड्स, खाली मेरे आपको इतना ही कहना है कि मेरा फोन आए ना तो उठा लेना। मैं थोड़ा बदनाम हूँ, कई लोग खाना खाते खाते मेरे को देख के रास्ता बदल देते, अरे यार ये आ रहा है, अभी जेब में हाथ डालेगा। पर मित्रों, ये हंसते हंसते, खेलते खेलते, कूदते कूदते हमने आज JATF जैसी महान संस्था का निर्माण किया। कल आपको फक्र होगा, आज BAPS सबको मालूम है, स्वामीनारायण 1200 संस्थाएं खड़ी कर दी साहब एजुकेशन की। छोटा समाज है पर क्या खड़ी की। और आज प्रॉपर्टीज आप क्रिएट करोगे, हॉस्टल्स, हमारे लिए नहीं है, 25, 50, 100 साल के बाद में आपको इतिहास याद करेगा कि छोटी सी अमाउंट, हमारे एक बाल जितना पैसा, 1-2 करोड़ रुपया यहाँ बैठे हुए व्यक्तियों के लिए साहब इतना ही है जितना एक हेयर है। तो आप, मेरा फोन आए तो मेहरबानी करके मुझे मिलते रहना, प्रेम से गले लगाना, और बहुत जल्दी आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। अरे अभी 5वां मार्च के पहले एक और अनाउंसमेंट। देखो कैसा प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ बरसता है। 5वां बोले, अभी देखो इंद्र भाई क्या बोलते हैं, JATF का प्लेटफॉर्म है ना। वाह इंद्र भाई वाह, चेयरमैन हो तो ऐसे हो। 5वीं हॉस्टल मार्च के पहले पूना के अंदर, ये 5 फाउंडेशन करेंगे। हाँ लो, चट्टी मोहाली, चंडीगढ़, तो ऐसे बरसते हैं यार के सवाल ही। पर मैं आज इस मौके पर खास करके संजय भाई की स्पोर्ट्समैनशिप, और संजय भाई का जितना अभिवादन करूं उतना कम है। अभी प्लेटफॉर्म वैसे एजुकेशन का ही है। आपको सबको मालूम है कि जीतो के मित्र ही एक यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं, मोतीलाल जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम भी उनके हनुमान बने हुए हैं उसमें। और ये 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। जगह ले ली गई है पनवेल के पास, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में, और उनमें ट्रस्टी बनाने थे नाटा जी, सॉरी,
उनमें ट्रस्टी बनाने थे, वो सिर्फ 1 या 2 वाले नहीं थे, 50 रुपए वाले थे। अब 50 करोड़ के ट्रस्टी बनाने, और मोतीलाल जी ने संजय को फोन किया। मैं इसलिए आज बात कर रहा हूं इंद्र भाई, मैं लो साहब, वाह वाह वाह, हमारे वाइस प्रेसिडेंट डायनामिक 7वां चेन्नई। मेरे को लगता है आज ही मेरे 10 पूरे हो जाएंगे यार, यहीं पूरे हो जाएंगे। अभी कोई और पीछे बैठे तो बोल दो भाई, बनानी तो है ही है सबको। अरे बेंगलोर, यस 8वीं, ये आगे तेजराज जी, हमारे विश्व पितामह जीतो के तेजराज जी, 8वीं बेंगलोर। लो, अरे कमलेश सुजतिया, क्या बात है यार, तो मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट अपेक्स, 9th इन इंदौर। अब एक ही बचा है, तो मैं बात कर रहा था, एक आ जाएगी, मैं 2 मिनट ले लेता हूं पृथ्वीराज जी। मैं एक बात कर रहा था संजय भाई की, कि मोतीलाल जी ने उनको यूनिवर्सिटी में ट्रस्टी बनने का आमंत्रण दिया, और उनको बोला कि हम आपको मिलना आना चाहते हैं। मुझे मालूम है सर, मुझे उनको बोला कि भाई हम इसके लिए मिलना आना चाहते हैं। तो बोले काम तो यही है, यूनिवर्सिटी में आपको हमारे साथ जुड़ना है। तो बोले इसके लिए आपको आने का जरूरत नहीं, मेरी तरफ से हाँ है। ये है ऐसा संजय भाई, 50 करोड़। तो अभी जैसे इन्होंने बोला कि इससे ऊपर आना चाहिए, हमारे खाबिया जी ने, खाबिया जी क्या यार आप 15-15 की बातें करते हो, प्रोजेक्ट ही छोटा, इसलिए छोटा अमाउंट बोला। अगर ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ का होता तो संजय 25 बोलता, जब प्रोजेक्ट 60 करोड़ का हॉस्टल है तो 15 बोला, क्योंकि हमारा जो नॉर्म्स है उस हिसाब से। तो ऐसे हमारे डायनामिक संजय भाई कहाँ है, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। ही हैज नॉट टेकन सेकंड्स टू से यस टू बिकम ए ट्रस्टी ऑफ यूनिवर्सिटी with the trusteeship fees is only 5050 CR, nothing else. So proud of you, keep it up. And ऐसे ही जिन जिन लोगों ने आज हॉस्टल बोली है, उनसे एक ही निवेदन है कि जो हमारा मेन डोनर है, प्रिंसिपल डोनर जिनको बोलते हैं, जैसे संजय भाई ने बॉम्बे का जिम्मा लिया, तो आज 9 का नाम मैं अभी लिख लेता हूं, सबको धन्यवाद का लेटर वेटर सब बहुत जल्दी भेज दूंगा। पर आप एक ही काम करना, वहां का प्रिंसिपल डोनर को पहले ढूंढ लो, बाकी का सब हो जाएगा। आपको SMS भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, सब लेके आऊंगा, आपके घर पे आऊंगा बहुमान करने के लिए। पर आप प्रिंसिपल डोनर अपने अपने शहर में जल्दी ढूंढ लेना। थैंक यू वेरी मच। संजय भाई के बारे में मैं थोड़ा 1 मिनट का समय लूंगा। लास्ट टाइम जब सुकरा जी थे, तो सुकरा जी ने एक बोला था कि नरेंद्र अपने को बॉम्बे में एक हॉस्टल चाहिए। आज तक 10 साल में हम लोग एक बॉम्बे में हॉस्टल नहीं बना पाए। उस टाइम जाते जाते हमने एक बिल्डिंग भी देखी थी, और उस टाइम 55 करोड़ में वो बिल्डिंग भी मिल गई थी, पर कोई इंसिडेंट की वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। इस बार पृथ्वीराज जी आए, पृथ्वीराज जी ने 3-4 बार हॉस्टल भी देखी, मेरे को भी फोन किया। तो उस टाइम संजय ने मेरे को बोला कि नरेंद्र किसी दिन भी तू हॉस्टल लेगा, तू मेरे को बोलना क्या काम है। मैंने वो नाम सस्पेंस रख के मैं बोला कि जिस दिन ये हमारे पहले जीतो में JTF में डिस्कस हो जाए, उस दिन हम नाम डिस्कस करेंगे। तो परसों 3 दिन पहले ही नाम डिस्कस हो गया कि 15 करोड़ रहता। 2 हॉस्टल है, एक हॉस्टल का सौदा हो गया है, तो हमारी उसमें इच्छा है। एक और भी है, ये इनका ऐसा है नरेंद्र भाई का, कि मुझे भी कहा कि मेरे पास एक 100 करोड़ का डोनर भी है। एक मिनट वो बहुत सारी बातें करने के लिए। 1 मिनट, बात यह है कि संजय भाई ने पर्सनली बोला कि अगर बिजनेस स्कूल बनती है और उसमें कोई हार्वर्ड वगैरह टैग लगता है, तो 100 करोड़ रुपया मेरा फर्स्ट डोनेशन मेरे नाम से होगा। तो मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि संजय भाई का इतनी उदारता से उन्होंने उस दिन बोला था, मैं बोला इसका अभी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की कि तू अनाउंस कर दे कर। थैंक यू। So thank you जीतो, जय जिनेंद्र। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे थे कि बीइंग आई वेंट टू हार्वर्ड, और मुझे लगा था कि हम लोग इतना दूर जाके, आई थिंक इफ़ यू एबल टू गेट वन स्कूल इन इंडिया, तो आई थिंक एज ए CSR, एज ए ऑथम, इन टाइम टू कम आई एम रेडी टू कंट्रीब्यूट 100 crore। तो वही बात के ऊपर, जहाँ तक 15 करोड़ बॉम्बे हॉस्टल का बात है, मुझे मालूम ही था जिन साहब। आई वॉज सिटिंग ऑन द डायस विद पृथ्वीराज जी, और पृथ्वीराज जी तो जीतो में कोई पूछता नहीं है, सीधा अनाउंस करते हैं। तो इट वॉज सरप्राइज फॉर मी, और जो आदेश दिया, आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच जीतो फॉर ऑलवेज गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मैं जितना अच्छा कर पाऊँगा शायद आई कीप डूइंग दिस। थैंक यू। Thank you, Sanjay Bhaiya. I would like to welcome Shri Mahavir Ji Singhvi, IFS, Joint Secretary, Ministry of Foreign Affairs,
between us. Also would like to welcome Shantilal ji Kawar, Teja ji Golecha, Narendra ji Shishimal, Kamlesh ji Sojatia, who have graced this occasion. Now, नरेंद्र भाई, अगर अपने ये जीतो के हॉस्टल खुलने जा रहे हैं, इसी के साथ हमारे 4 नेक्स्ट जुडिशरी के हॉस्टल भी खुलने जा रहे हैं। अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, दिल्ली और एक जयपुर, 5 जुडिशरी भी जेटीएफ अपना लॉन्च करना चाह रही है। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा इंद्रजीत जैन, आवर चेयरमैन जेटीएफ, टू कम ऑन द डाइस एंड सर प्लीज शेयर आवर थॉट्स विद अस। सभी को जय जिनेंद्र। समय बहुत हो चुका मेरे साथ। ये हमारे लिए हमारे सौभाग्य की बात है कि आज नवरात्रि के बाद में 9 हॉस्टल डिक्लेयर हुए यहाँ पे बैठ करके। ये बहुत बड़ी बात है। जेटीएफ का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, काम भी होता है। हमारी पूरी लीडरशिप जो आज यहाँ पे हाजिर है, मैं समझता हूँ कि जो भी जेटीएफ कर रहा है या जो अचीव हो रहा है जेटीएफ के अंदर में, इसका रीज़न ये है कि हमारी लीडरशिप जो है, उनके ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद, उनके वो गाइडेंस से ये सारा काम हो रहा है। बहुत सारे ट्रस्टी हमारे यहाँ पे आए हैं, उनका सबका मैं स्वागत करता हूँ। कुछ ट्रस्टी आज हमारे साथ और भी जुड़ेंगे। जेटीएफ आने वाले टाइम में हॉस्टल का टास्क तो हमारे को दिया गया है, लेकिन साथ साथ में बिजनेस स्कूल के लिए हम जा रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने अभी आएगा। तो आने वाले टाइम में जेटीएफ बहुत बड़ी ऊंचाई पे जा रहा है। बाकी आपको सब पता ही है कि हमारे पास में 6 हॉस्टल्स हैं और हमारे 508 ट्रस्टी हो चुके हैं अभी आज तक। ट्रस्टी और बनने जा रहे हैं। पैसा CSR बहुत है हमारे पास में, लेकिन साथ में क्योंकि CSR होने की वजह से हमें उसको स्पेंड भी करना है, तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। खास करके बिजनेस स्कूल के ऊपर हमारा फोकस है, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक जेटीएफ का सवाल है, अभी सेल्फ सस्टेनेबल है, कोई ज़्यादा ऐसा खर्चा हमारे पास है नहीं, तो हमें यही करना पड़ेगा कि किसी तरह से हमें अपने प्रोजेक्ट चलाने होंगे और प्रोजेक्ट भी ऐसे हो जो कि कम से कम सेल्फ सस्टेनेबल हो, जहाँ पे आने वाले टाइम में या आने वाले समय में कोई ऐसा नहीं हो जहाँ पे हम उसको चला नहीं पाएँ या कोई ऐसी दिक्कत हो। मेरा मानना ये है कि जेटीएफ आज भी जो कर रहा है या कल भी जो करेगा, उसको हमेशा बेंचमार्क के तरीके से यूज़ किया जाएगा। और जब तक जेटीएफ के अंदर में आप सभी का सहयोग, आपका सपोर्ट हमेशा रहेगा, इसी तरह से ये जेटीएफ आगे काम करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी पूरी टीम को, खास करके TNA PS को ये धन्यवाद देता हूँ ये प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम जो यहाँ पे किया है, जीतो कनेक्ट जो चल रहा है, उसके लिए भी मैं उनको, पूरा हैदराबाद को इसके लिए खास कर धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ, इस तरह से ये काम हुआ है। सो दोबारा एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए मैं ये मानता हूँ कि आने वाले टाइम में आपका जेटीएफ के साथ सपोर्ट इसी तरह से बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। दो ट्रस्टी आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ऊपर बता रहे हैं। सुरेंद्र जी बाठिया और संजय चंपालाल जी जैन, आप प्लीज ऊपर बता रहे हैं स्टेज में। बताओ नाम। किसी और की भी इच्छा हो तो आप आ सकते हैं। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ तक मेरा मानना है। तो जेटीएफ के जुड़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं और सभी के पास जेटीएफ सबके दिल के पास है। तो मैं जेटीएफ के थ्रू हम एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप प्लीज़ जो भी चाहें आप आ सकते हैं और जेटीएफ से जुड़ सकते हैं। I would request Sanjay Bhaiya to please come on the stage and facilitate, and also Tarun ji, please come on the stage. Tarun Jain ji. हमारे मोटिवेटर कुशल जी, कुशल भाई है। Please facilitate. इसी बीच में चाहूँगा गणपत अंकल एक और अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं। गणपत अंकल यहाँ पे फेलिसिटेशन पिन के द्वारा हो रहा है और जैसे हमारे विजय भाई ने भी बोला तो एक नाम बाकी था, तेजराज जी, शांतिलाल जी। तो एक जिस भूमि ये नवाबों की नगरी में बैठे हैं, मोतियों का शहर है, इतना बड़ा जीतो कनेक्ट जिन्होंने किया, हैदराबाद के इतने सारे नवाब यहाँ बैठे हैं, तो मैं बोला हैदराबाद का नाम अभी तक क्यों नहीं आया। तो आई एम हैप्पी टू अनाउंस, अभी मैंने गौतम भाई से बात किया, पोकरना जी से, और यहाँ पे और गौतम भाई, यहाँ पे एक और गौतम भाई, हैदराबादी स्कूल ऑफ गौतम,
There are 7-8 Gautams in our Jito, and all are very well equipped. So I am pleased to announce the 10th name is a Hyderabad city. मित्रों, मैं एक बात आपको अनाउंस करना मैं रह गया था कि इट विल बी द इनिशिएटिव एंड इंसेंटिवाइज बाय द अपेक्स. ऑलमोस्ट 30 to 35% जैसा पैसा हम अपेक्स से देंगे. जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, सपोज करो 20 करोड़ होती है, 30 करोड़ होती है, मैक्सिमम सीलिंग 15 करोड़ है. अगर कोई 100 करोड़ की बनाए तो भी 15 मिलेगा, और 50 की बनाएंगे तो भी 15 मिलेगा. मैक्सिमम सीलिंग वी हैव, बिकॉज वी हैव लिमिटेशन. बट जैसे बरसात हो रही है तो हो सकता है ये 35 हम लोग बाद में 40 करें. तो गौतम भाई, ये प्रोजेक्ट बहुत ईजी है. जिन लोगों ने भी आज अपना अनाउंसमेंट किया है उनके ध्यान के लिए कि 100% आप लोगों को कलेक्ट नहीं करना है. आपको लोकल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 67% फंड ही आपको लोकल कलेक्ट करना है, और उसमें से भी 25% अगर मेन डोनर देता है तो पीछे आपको कलेक्ट करना रहेगा हार्डली 10-15 करोड़, विच इज ए वेरी इजी. हमने इतना स्ट्रक्चर इसका जमा के दिया है निर्मला सीतारमन जैसे कि किसी को मालूम भी नहीं पड़े कौन सी जेब से कहाँ निकला. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द 10 जिन्होंने अनाउंस किए. थैंक यू वेरी मच. मेरा काम हो गया. थैंक यू. Now, I would like to call upon our Secretary General, Honorable Secretary General, Shri Mayur Jain ji. Mayur ji, if you can come on the stage and present your presentation to us. हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून. जय जिनेंद्र. पहले तो आज इतनी खुशी हुई जब विजय भाई ने बोला कि भाई जीतो के अंदर एक JTF ऐसा वर्टिकल है जो सबसे फुल स्पीड पे चल रहा है. तो वो फुल स्पीड पे चलने का जो कारण है वो उस टीम का है जो पीछे बैक स्टेज पे जो पूरी काम कर रही है, हमारी मैनेजिंग कमेटी. सो बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय मैनेजिंग कमेटी टीम, जो एक्चुअली जिसका पूरा सपोर्ट है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से हम इस स्पीड से चल पा रहे हैं, इतने मेंबर्स बना पा रहे हैं. सो कैन आई रिक्वेस्ट द एंटायर MC कमेटी टू प्लीज कम ऑन द स्टेज. आज एक पर्सन जो गौतम भाई आज हमारे मिस हैं, आज हम सब उनको बहुत मिस कर रहे हैं. उनकी कमी रियली हम सबको यहाँ पे महसूस हो रही है. DC जैन साहब, अरे मैं आ रहा हूँ. नरेंद्र भाई, तो तेजराज जी साहब, आप मानेंगे पूरी टीम आज हमारी MC कमेटी हर सिटी, अलग अलग जोन में, हर सिटी से, छोटे छोटे सिटी से और सब जगह पहुंच रहे हैं. सो आपको आज पता लगेगा उसका फ़ायदा क्या हुआ आज हमारे JTF को. सो मैं स्वागत करता हूं हमारे सब ट्रस्टीगण का, हमारे सब मेंटर्स का, जो आज यहाँ हैदराबाद JTF फुल सर्कल पे आए. एंड थैंक यू हैदराबाद एंड टीम TNAPTS for organizing this event and to let us show what JTF is doing today. Can I have a slide please, Miral? So अभी हमारा 1 साल पूरा हुआ है, एंड अभी इस 1 साल के अंदर हम लोगों ने 90 नए मेंबर्स बनाए हैं, 90 नए ट्रस्टीज़, जिससे आज हमारी स्ट्रेंथ 506 सॉरी. सो आज वी आर इन टोटल 506 न्यू टोटल ट्रस्टीज़ इन JTF. एंड सबसे बड़ी बात ये है, वो मिरल, कैन वी प्ले दैट 500 ट्रस्टीज़? एक छोटा सा वीडियो, कैसे हमारा ये ट्रस्टीज़ जो हमारे पेट्रन्स बने, ये साइकिल.
सो नाइस हमारे 504 मेंबर, इससे जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि पहले हमारी प्रेजेंस वी वर इन ऑलमोस्ट 22-23 cities. Now we are in almost 44 cities, which includes tier 2 cities like Ludhiana, Muzaffarnagar, Nasik, Aurangabad. मतलब पहले हम 22 से आज हम 44 सिटीज़ के अंदर आज हमारे ट्रस्टीज़ हैं. एंड फ्रॉम इंडिया टू दुबई टू मलेशिया. एंड अभी मनोज भाई ने बोला कि एक अभी ट्रस्टी किसी ने JTF के लिए अभी बोला है, ही इज़ फ्रॉम लंदन. सो वी आर गेटिंग ट्रस्टीज़ फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड नाउ. And I thanks all our trustees for their contribution, जिसकी वजह से आज हमारा कॉर्पस आप देख रहे हैं. आज हमारा कमिटेड कॉर्पस इज़ 608 crores, जिसमें से आर contribution which we have received which is 343 crores, and 264 crores is what we will receive by end of this financial year. And the way JTF branding is going, the way JTF is moving, I think हम लोग अगले 5 साल के अंदर our total committed corpus will be not less than 1,050 crores. Third slide. It is our officers. I really, from core of my heart, I really thanks, and we are privileged that despite your packed schedules, you give your time, energy selflessly to mentor our aspirants. And all that efforts are clearly visible in our results recently, जो हमारे results आए. UPSC के अंदर our 32 aspirants got selected. MPPSC, our 5 out of 9 were final selected in Madhya Pradesh. MPSC, our 14 out of 21 qualified for interview. And recently 180 aspirants appeared for mains, जिनका result अभी November में we will see. So in UPSC, normally the average, India का जो हमारा average है, which is about 2-3%, wherein JTF का अपना strike rate is almost 30%. So out of 4,900 aspirants, what you can see, mentored in our centers, we have 311 qualified as UPSC, 354 as 359 actually. This is 359 as SPSC officers, and rest JE mains and JE advanced. Today we have our 6 centers which are fully owned by JTF. जो जैसे नरेंद्र भाई ने बताया कि पहले हमारे सारे centers rent पे थे, so आज वही सारे centers हमारे अपने, they're all owned by JTF. All our centers are equipped with state-of-art facilities for offline and online learning. Tech-enabled integrated ERP system is operational in all our centers. Be it admissions, record keeping, attendance, wherein aspirants' entry and exits records are all automatically updated and shared with parents in real time. Progress report cards of aspirants for academic team for performance of students is all monitored and is easily visible by all our mentors. Out of our 6 centers, 5 centers are dedicated for UPSC, which is Delhi, Jaipur, Pune, Indore, and Bangalore. Delhi with the capacity of 260 students, Jaipur, Indore, Pune, and Bangalore with, so Jaipur, Indore, and Pune with 60, and Bangalore with 40. Our center in Kota is dedicated for IIT, which has a capacity of 50 students. Why? Chennai. So I think, so we'll have DC Jain Saab to answer that. See, what I'm showing is all owned by JTF. And that Chennai one is not owned by JTF, and DC Jain Saab will put more light on that.
So that is still under deliberation. For judiciary, we are already deliberating. We are planning for 4 centers for judiciary. In January, we will have 3 centers open. Yeah. So all our centers are independently handled by a dedicated team of 15-20 staff members, depending on size and capacity. We have independent mentors, full-time mentoring our aspirants, and thanks to all our officers who pay regular visits to all our centers time to time for mentoring and counseling. As we step into judiciary, as I said, we will have 3 centers operational in January. So friends, very few community like us, invest as much as both financially and emotionally to build bureaucratic leadership in their own people. And we in Jito are doing it consistently year and year. So once again, each one of you, our advisors, officers, trustees, I extend my heartfelt gratitude. So let us continue this journey with same passion and purpose. Thank you so much. And before I leave, I would like to show you JTF का अभी हम लोगों ने अभी 15 दिन पहले ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है, our own JTF office in Mumbai.